The work ethics of public leaders have been reciprocated by him by not taking a day off for the last 8 years as Prime Minister. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೂ ದಿನವೂ ರಜೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಮೋದಿಯವರು ಮಾತ್ರ. And working 18 hours a day without an iota strain is an enigma for all. Perhaps world has not seen such a leader in the recent past. Today, the world looks up to India for its leadership qualities, which has brought magical information in social and economic sectors. As the saying goes, if Modi is there, everything is possible. India managed the deadly pandemic like no other country under his leadership, be it painful lockdown or management of pandemic. By vaccination, India shone like never before became the undisputed leader of democratic nations. The enigma of political and economic problems are finding spontaneous solutions. The time-worn problems like Kashmir and Ram Mandir issues have been resolved, which never dreamt earlier. The hidden strength of India is not only being discovered now, but are finding concrete expression in every part of Indian society. We are happy that Honorable Prime Minister is visiting the Srimad for the third time, once as the Chief Minister of Gujarat and twice as the Prime Minister of India. The presence of Prime Minister would be a propelling factor for all to do something for their motherland. The love for one's country is no more an inspired duty but a mission for all. This is the change we all wanted to see and we could see in our lifetime because of Modi ji, who has rewritten human values for the whole world. India wants to be led by him for many more years to come as he is scripting the prelude for the greater India of our dreams where ideal human life could thrive. Tomorrow is International Day. It was Sri Modi ji who was instrumental in making it a really by choosing 21st June as the day of yoga because it is the summer solstice being the longest day of the year. Today, yoga is officially the world's most widely accepted practice for life of human harmony and peace. May God bless him with immense strength and vigor for the continued service of nation. May this visit be the prelude of many more visits to Sri Sutturmat in the coming days. His Excellency, the Governor of Karnataka, Sri Tawarchand Gehlot ji, is kind enough to grace the occasion. From a humble beginning, His Excellency has risen to great heights through his sheer grit and courage. A self-made man has all the tender qualities of a public personality. His presence here today is extremely gratifying. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತೊಂದುಂಟು, ಬಯಸಿ ಬಂದುದು ಅಂಗಭೋಗ, ಬಯಸದೆ ಬಂದುದು ಲಿಂಗಭೋಗ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ಕನಸನ್ನು ಅದು ಘೋಷಣೆಯಾಗ ಹಿಂದೂ ದಿವಸ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಬೇಕು ಅಂತನೂ ಆಸೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬಂದರೆ ಹರನೀವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯು ಬನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು, ಅವರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ದಂಡೆಗೆ ದೋಣಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸೇತು ಬಂದಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳಾದಂಥವರು ಅಂತಹ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು, ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಮೈಸೂರದು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಭಿಕರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು 16ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ 10ವರೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ 4 ಮಾತು ವಿರಾಮ. ಈಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನಲಂಕರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಲೋಕಹಿತೈಷಿಗಳಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳವರಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅವರಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊರೆತದ್ದು ಸುದೈವ ಇದು. ದಿನದ ಎಲ್ಲ ತಾಸುಗಳನ್ನು ಜನಚಿಂತನೆಗಾಗಿ, ಜನಹಿತ ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಬರೇ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೀಗ 3 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಯೋಗದ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಶಿವಸೂತ್ರ, ಪತಂಜಲ ಸೂತ್ರ, ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ. ಅವರಿಂದಲೇ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಯೋಗಿಗಳಿರೋದರಿಂದ ಅವರಿಂದ. ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ಯಾರ ಹೇಳಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಸೆಗಳದಾವ, ತುಂಬೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಕಂಡ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. ಆ 3 ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. ಇದು ಯೋಗ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದು, ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದು, ಇದೇ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಸುಂದರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರ. ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಇಂಥವರು. ಅವರು 100 ವರ್ಷ ಮೊನ್ನೆ ಹೌದು ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತು.
ಅವರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ, ಇನ್ನು 100ರ ಮೇಲೆ. ಆ ತಾಯಿಯವರು ಇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಏನು 100ರ ಮೇಲೆ ಬಾಳಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನ, ಯುವಕರು, ದೊಡ್ಡವರು ಕಲಿಬೇಕು. ಏನು ಅಂದರೆ, ದಿನದ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಮುಖದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಆ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡದೇ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. May I now request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to inaugurate the new building and also release the books. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಂ. ಸುತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. श्रद्धेय श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी जी, श्री सिद्धेश्वर महास्वामी जी, श्री सिद्धलिंगा महास्वामी जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और सत्तूर मठ से जुड़े आप सभी श्रद्धालुगण और विशाल संख्या में यहाँ आशीर्वाद देने आए पूज्य संतगण, मैं मैसूरू की अधिष्ठात्री देवी माता चामुंडेश्वरी को प्रणाम करता हूं।
ये मां की कृपा ही है कि आज मुझे मैसूरू आने का सौभाग्य मिला। मैसूरू के विकास के लिए कई बड़े कार्यों के लोकार्पण का अवसर भी मिला और अब मैं यहां आप सब संतों के बीच इस पुण्य कार्यक्रम में आकर के स्वयं को बहुत ही धन्यता अनुभवता हूं और यहां से मैं मां चामुंडेश्वरी के चरणों में जाऊंगा, उनके भी आशीर्वाद लूंगा। इस आध्यात्मिक अवसर पर मैं श्री सुत्तूर मठ के संतों, आचार्यों और मनीषियों को इस मठ की महान परंपरा, उसके प्रयासों को नमन करता हूं। विशेष रूप से मैं आदि जगत गुरु शिवरात्रि शिवयोगी महास्वामी जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस आध्यात्मिक वटवृक्ष के बीज रोपा था। ज्ञान और अध्यात्म की उस महान परंपरा को आज सुत्तूर मठ के वर्तमान मठाधीश परम पूज्य श्री शिवरात्रि देशिकेंद्र महास्वामी जी के आगे बहुत तेजी से उसको फल फूल रहा है। श्री मंत्र महर्षि जी द्वारा शुरू की गई पाठशाला ने श्री राजेंद्र महास्वामी जी के मार्गदर्शन में इतना विशाल प्रकल्प लिया। भारतीय संस्कृति और संस्कृत शिक्षा के लिए इट पाठशाला के नए भवन का लोकार्पण भी आज हुआ है। मुझे विश्वास है कि अपने इस आधुनिक और भव्य स्वरूप में ये संस्थान भविष्य निर्माण के अपने संकल्पों को उसे और अधिक विस्तार देगा। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए आप सभी को सर झुका करके अभिनंदन भी करता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज मुझे श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी द्वारा नारद भक्ति सूत्र, शिव सूत्र और पतंजलि योग सूत्र पर अनेक भाष्यों के लोकार्पण का भी अवसर मिला है। पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी भारत की उस प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसे शास्त्रों में श्रुत परंपरा कहा गया है। श्रुत परंपरा यानी जो सुन लिया उसे मस्तिष्क और हृदय में धारण कर लिया। विश्व योग दिवस के अवसर पर पतंजलि योग सूत्र का भाष्य, नारद भक्ति सूत्र और शिव सूत्र के जरिए भक्ति योग और ज्ञान योग को सहज सुलभ बनाने का ये प्रयास, इसका लाभ न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा। और मैं आज जब आप सबके बीच में हूं तो मैं कर्नाटक के जो विद्वत जन है उनसे प्रार्थना करूंगा कि दुनिया में समाज विज्ञान पर जो कुछ भी लिखा गया है पिछले 4-5 शताब्दियों में, अगर उसका अध्ययन करेंगे तो इस विषय के जानकार लोग इस बात पर पहुंचेंगे कि नारद सूक्त उससे भी पुराना है और समाज विज्ञान का एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट संपुट हमारे पास है। दुनिया के लिए आवश्यक है कि एक बार अध्ययन करें। जो पश्चिम के विचारों को जानते हैं वो कभी नारद सूक्त के माध्यम से दुनिया को देखने का, समाज व्यवस्था को देखने का, मानवीय मूल्यों को देखने का अद्भुत ग्रंथ ये नारद सूक्त है और उसको आज आधुनिक परिभाषा में परिभाषित किया है
समाज की बहुत बड़ी सेवा की आपने। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है और ज्ञान का कोई विकल्प भी नहीं है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने भारत को उस चेतना के साथ गढ़ा जो ज्ञान से प्रेरित है, विज्ञान से विभूषित है, जो बोध से बढ़ती है और शोध से सशक्त होती है। युग बदले, समय बदला, भारत ने समय के अनेक तूफानों का सामना भी किया, लेकिन जब भारत की चेतना क्षीण हुई तो देश के कोने कोने में संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने पूरे भारत को मत कर देश की आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया। उत्तर में मेरी काशी से लेकर यहीं पास में नंजरगुड़ दक्षिण काशी तक मंदिरों और मठों की सशक्त संस्थाओं ने गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत के ज्ञान को प्रदीप्त रखा। मैसूरू में श्री सुतुरु मठ, तुमकुरु में सिद्धगंगा मठ, चित्रदुर्ग में श्री श्रीगेरे मठ, मुरुगेंद्र राजेंद्र मठ, चिकमंगलूर में श्री रंभापुरी मठ, हुबली में श्री मुरुसाविरा मठ, बीदर में बसव कल्याण मठ, अकेले दक्षिण भारत में ही ऐसे कितने ही मठों का केंद्र है जो असंख्य विद्याओं, अनंत विद्याओं को सदियों से सींचते आ रहा है। साथियों, सत्य का अस्तित्व संशोधन पर नहीं, सेवा और त्याग पर टिका होता है। श्री सुतुर मठ और जेएसएस महाविद्यापीठ इसका बड़ा उदाहरण है। श्री शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी ने जब समाज सेवा का संकल्प लेकर निशुल्क हॉस्टल खोला था, तब उनके पास क्या संसाधन थे? किराए की इमारत थी, राशन आदि की व्यवस्था के लिए भी जरूरी पैसे नहीं थे। और मैंने सुना था कि एक बार पैसे के अभाव में हॉस्टल की चीजों की सप्लाई रुक गई तो स्वामी जी को लिंगम करडिगे भी बेचना पड़ा था। यानी उन्होंने सेवा के संकल्प को आस्था से भी ऊपर माना। दशकों पहले का वो त्याग आज सिद्धि के रूप में हमारे सामने है। आज जेएसएस महाविद्यापीठ द्वारा देश से 300 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स और 2 यूनिवर्सिटीज देश विदेश में चल रही हैं। ये संस्थान न केवल भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर्स है, बल्कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के भी उतना ही योगदान दे रहे हैं। सुतुरु मठ गरीब बच्चों की, आदिवासी समाज की और हमारे गांव की जो सेवा कर रहा है, वो भी अपने आप में एक उदाहरण है। साथियों, कर्नाटका, दक्षिण भारत और भारत की बात हो, शिक्षा, समानता और सेवा जैसे विषय हो, तो ये विमर्श भगवान बसवेश्वर के आशीर्वाद से और विस्तारित हो जाते हैं। भगवान बसवेश्वर जी ने हमारे समाज को जो ऊर्जा दी थी, उन्होंने लोकतंत्र, शिक्षा और समानता के जो आदर्श स्थापित किए थे, वो आज भी भारत की बुनियाद में है। मेरा एक बार लंदन में भगवान बसवेश्वर जी के प्रतिमा का लोकार्पण का सौभाग्य मुझे मिला था और उस समय मैंने कहा था कि एक तरफ मैग्ना कार्टा रखिए और दूसरी तरफ भगवान बसवेश्वर के वचन रखिए, आपको पता चलेगा
कि मैग्ना कार्टा के पहले, कितनी सदियों पहले मेरे देश में समाज के प्रति देखने का दृष्टिकोण क्या था, उससे नजर आएगा। साथियों, उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए श्री सिद्धगंगा मठ आज 125 से ज्यादा इंस्टीट्यूट चला रहा है, समाज में शिक्षा और अध्यात्म का प्रसार कर रहा है। और मुझे बताया गया है कि सिद्धगंगा मठ के स्कूलों में इस समय करीब 10,000 विद्यार्थी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। भगवान बसवेश्वर की ये प्रेरणा, निस्वार्थ सेवा की ये निष्ठा, यही हमारे भारत की बुनियाद है। जितनी मजबूत ये बुनियाद होगी, उतना ही मजबूत हमारा देश होगा। साथियों, आज जब हम देश की आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तो आजादी के अमृत काल का ये कालखंड सबके प्रयास का उत्तम अवसर है। हमारे ऋषियों ने सहकार, सहयोग और सबके प्रयास के इस संकल्प को सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै जैसी वेद ऋचाओं के रूप में हमें दिया है। आज समय है हम हजारों सालों के उस आध्यात्मिक अनुभव को साकार करें। आज समय है कि हम गुलामी के सैकड़ों वर्षों में देखे गए सपनों को साकार करें। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को और गति देनी होगी। हमें अपने प्रयासों को राष्ट्र के संकल्पों से जोड़ना होगा। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदाहरण हमारे सामने है। शिक्षा हमारे से भारत के लिए सहज स्वभाव रही है। इसी सहजता के साथ हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई के विकल्प दिए जा रहे हैं। कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु के साथ साथ संस्कृत जैसी भाषाओं को भी प्रमोट किया जा रहा है। हमारे सभी मठ और धार्मिक संस्थान इस कार्य में सदियों से लगे हुए हैं। मैसूरू तो ऐसी जगह है जहां से देश का एकमात्र संस्कृत दैनिक अखबार सुधर्मा आज भी प्रकाशित हो रहा है। अब देश भी आपके इन प्रयासों में अपना सहयोग दे रहा है। इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी तरह स्वास्थ्य और आरोग्य की दिशा में भारत के प्रयासों से आज आयुर्वेद और योग को पूरी दुनिया में नई पहचान मिली है। हमारा प्रयास है कि देश का एक भी नागरिक अपनी विरासत से अनभिज्ञ और वंचित न रहे। इस अभियान को पूरा करने के लिए हमारे आध्यात्मिक संस्थानों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बेटियों की पढ़ाई लिखाई के लिए, जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए और स्वच्छ भारत के लिए भी हम सबको मिलकर आगे आना होगा। एक और महत्वपूर्ण संकल्प प्राकृतिक खेती का भी है। हमारा अन्न जितना शुद्ध होगा, हमारा जीवन भी, और अन्न शुद्ध हो तो मन शुद्ध, उतना ही स्वस्थ और पवित्र होगा। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी हमारे सभी धार्मिक मठ और संस्थान आगे आकर लोगों को जागरूक करें। हमारी इस भारत माता, हमारी इस धरती माता, उसको हम केमिकल से मुक्त करें। इसके लिए हम जितना करेंगे, ये मां के आशीर्वाद सदियों तक हमारे काम आने वाले हैं। साथियों, जिस कार्यों में संतों का प्रयास जुड़ जाता है, उस कार्य में आध्यात्मिक चेतना और ईश्वरीय आशीर्वाद भी जुड़ जाता है। मुझे विश्वास है आप सभी संतों का आशीर्वाद निरंतर देश को मिलता रहेगा। हम साथ मिलकर नए भारत का सपना पूरा करेंगे। और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की पल है, पूज्य संतों ने जिस प्रकार से मेरे लिए
अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। मैं जानता हूं जो कुछ भी मेरे लिए कहा गया है, अभी मुझे वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि संतों के आशीर्वाद, हमारी महान सांस्कृतिक विरासत और आप सब संतों की मुझसे जो अपेक्षाएं हैं, आप ही मुझे घड़ते रहेंगे, आप ही मुझे दिशा देते रहेंगे और मैं आपके दिशा निर्देश से, संतों के मार्गदर्शन से, महान विरासत की प्रेरणा से उन कार्यों को पूरा कर पाऊं, ये ऐसे आशीर्वाद आप लोग मुझे दीजिए ताकि मेरे काम में कोई कमी न रह जाए और आपकी अपेक्षाएं अधूरी न रह जाए। इसी एक मेरी भावना को व्यक्त करते हुए मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। मेरा जीवन धन्यता अनुभव कर रहा है। मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। एल्लारिगो नमस्कार। I profusely thank Honorable Prime Minister for his inspiring words. ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುತ್ತೂರು ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜ್ಞಾನಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಬರೆದ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಎಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಮಠಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತುಂಬು ಕಂಠದಿಂದ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಸುತ್ತೂರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ, ರಂಭಾಪುರಿ 3000 ಮಠ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಠಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಠಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಅದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ.
ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಸುತ್ತೂರು ಮಠ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ, ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠ, ಮುರುಘಾ ಮಠ, ಮೂರು 3000 ಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಗಳು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.